Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification videos. Also, please refer my channel to your friends and trading communities as well. Friends, I have also a Telegram channel. This is a dedicated channel for serious trading individuals, and our objective is to improve our trading journey and become a profitable trader in Indian market. Here we are also discussing about discipline and lot other things. If you are interested, you can join the Telegram channel as well. The link is given in the description. You can join via the description link. If you try to search my channel, you will not get the channel. This is a pre-market report video for 2nd March 2026. That's for Monday. In this video, we are going to cover group performance, what all things we discussed during last Friday, chart review, FNO data analysis, technical view and outlook, pre-market review and levels. At the end, we are also going to do a special option chain analysis of Nifty because Nifty expiry is going to happen on Monday. Tuesday तो छुट्टी है इसलिए. Needless to say, we are going to cover everything, including the global and local cues. So, without wasting any time, let us go to our Telegram channel and let us first understand what is our performance, what all things we discussed during Friday, and how market reacted. And then we'll go to the chart and understand and what all things we need to keep in mind for Monday. This is my Telegram channel. This is a private Telegram channel, and if you search, you will not get it. So let us start from the performance. So if you look today's performance also, our profit percentage is more than 51%. Loss is hardly 14%. So this is because of our discipline and timely entry and exit points what we are discussing in this group. A lot of things we are discussing here. So I mentioned that Nifty 200 EMA on a daily time frame around 25 to 50. Market might get pulled to that level before any reversals. तो आप देख सकते हैं जैसे 25-250 तक आ गया, वहां टूट गया, 200 में टूट गया, वहां से एक फ्लैश क्रैश आ गया, 100 पॉइंट्स का फ्लैश क्रैश आ गया. मैंने यहाँ बहुत क्लियरली मैसेज अप मूव्स आर नॉट सस्टेनिंग, ये मैसेज मैंने करीब 12:30 पे दिया था. Up moves are not sustaining, so no chance for bulls till the time market is moving below 20 में. ये मैसेज क्लियर था. तो बहुत सारे मैसेज और मैंने दिया था, मैंने क्लियरली बोल दिया, ये देखिए पढ़ लो. हमेशा एक चीज बार बार याद रख लो, अभी के लिए लॉन्ग जाना गुनाह है हमारे मार्केट में. तो मैंने और भी मैसेज दिया, मना करने के बाद भी लोग रिवर्सल के लिए कूद जाते हैं और यही लॉस का सबसे बड़ा वजह है. तो आज मैंने क्लियरली बोला है कि आज आप लोग रिवर्सल ट्रेड यानी बुलिश ट्रेड करना ही नहीं है. एक और चीज आप इधर देख सकते हैं, मैंने बोला ये मैसेज मैंने दिया था 10 बजे. आई एम डन फॉर द डे, आई डोंट केयर वेयर द बोगस मार्केट गोस फ्रॉम हियर, विल सी यू गाइस ऑन मंडे. सो इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड फॉर द फुल डे. तो मैंने मजाक में लिख दिया कि आंखों में झाले पड़ सकते हैं, पूरा दिन स्क्रीन देखते रहेगा. तो कई बार क्या हो जाते हैं, तो पूरा दिन का मूव है, मार्केट 1 घंटे में दे देते हैं. तो फ्राइडे में ऐसे हुआ था, जितना भी शॉर्ट साइड का इमीडिएट मूव था, मार्केट ने सूर्य का आधा 1 घंटे में दे ही दिया था. तो उसके आगे आप फिर मार्केट में टिके रहेगा तो आपको लॉस ही लॉस होना है. अगर एक ऑप्शन सेलर है तो बात अलग है, ऑप्शन बायर्स के लिए जगह था नहीं. चलिए अभी हम लोग अपना चार्ट पे वापस चलकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों एक निफ्टी का चार्ट है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ. हम लोगों ने हमारा फ्राइडे का प्री मार्केट वीडियो में क्या डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि ट्रेंड लाइन बना रख लेना. जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे चलता है, आप इसमें लॉन्ग जाना ही नहीं है. तो मार्केट खुला ही गैप डाउन, लेकिन क्या एक बार भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं पाए, एक बार भी ये इसके पास आया ही नहीं है. तो हमारा लॉन्ग ट्रेड बनता ही नहीं था इस मार्केट में. तो शॉर्ट के लिए हमने बोला था, क्लियर शॉर्ट मिला था. तो इसी पॉइंट में मैंने करीब बोल दिया था कि 10 बजे बोल दिया कि हमारा शॉर्ट का मूवमेंट आज हो गया. तो उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली 255 पे एक ग्रीन कैंडल जैसे
बना बनते हुए दिखा, तो लोगों को लगता है कि डेली आते हैं ना, कुछ 50-60 पॉइंट का मोमेंटम आएगा लगता था। लेकिन वहां से 25 315 से धड़ाम से टूट गया, करीब 150 पॉइंट, 150 160 पॉइंट्स का ब्रूटल फॉल। ये किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं है। ये मुझे लग रहा है प्रोस और एफए ने मिलकर किया। इन लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा ब्रूटल फॉल का कारण मैं आपको बताता हूँ। ये लोग एक साथ इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं, तो ये और अनवाइंडिंग भी करवा देते हैं कुछ, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ सारे हेवी वेट स्टॉक्स में इन लोगों ने खुलेआम सेलिंग कर दिया, उसका लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लिया, तो पैनिक क्रिएट हो जाती। तो ये जेल शीट का कमाल है, दिखता है। ये सभी को ये सब दिखता नहीं, सभी को खाली रिटेलर लॉस होते जा रहे हैं, यही दिखते हैं। तो ये ब्रूटल फॉल का 2-3 रीजन है। वन इज ग्लोबल अनसर्टनिटी, सो पीपल आर थिंकिंग, इवन बिग प्लेयर्स आर अज्यूमिंग यूएस माइट अटैक ईरान ड्यूरिंग वीकेंड। तो वो लोग क्या है, कोई भी लॉन्ग कैरी करना नहीं चाहता था। और सेकंड रीजन था, हमारे जीडीपी का डाटा आने वाला था, तो जीडीपी का डाटा कैसे पता नहीं था, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद ही आया। अगर मान लो 19-20 हो जाते तो उसमें भी दिक्कत रहता था। तीसरा था मंडे एक्सपायरी है, तो इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इस तीनों चीज को लेकर हमारा मार्केट इतना गिर गया। चलिए, जो हो गया सो हो गया। अभी आपको क्या करना है, मंडे के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक नया ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का तो काम खत्म हो गया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक नया ट्रेंड लाइन बना देना, इसे इस पॉइंट को जोड़ देना। जब तक सेफ प्लेस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाते तब लॉन्ग नहीं करना। अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन में आकर फिर से रिवर्सल ले रहे, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मंडे आप स्कैल्पिंग शॉर्ट में रह रहे हैं, पीसीआर वगैरह ऑल्सो ओवरसोल्ड, इसलिए कोई भी अगर शॉर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा देर बैठना है नहीं शॉर्ट में, क्योंकि मार्केट में एक बाउंस आने के लिए बाकी है। और ईएमए भी हम लोग लगा देते हैं। तो शॉर्ट करना है तो आपको फ्रेश शॉर्ट 25 140 के नीचे बनते हैं, फर्स्ट टारगेट 25 100 फॉलो बाय 25,000 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए आपको सेफ प्लेस है 240 230 240 के ऊपर ही करना है। अगर जो भी रिस्की प्लेस है 200 के ऊपर एक स्कैल्पिंग लॉन्ग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी हम लोग चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको आप चाहते वीडियो पॉज करके मेरा वीडियो फ्राइडे की वीडियो दोबारा सुन सकते हैं। मैंने बोला 60,800 टूटते ही बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक बार भी 60,800 के ऊपर टिक नहीं पाए एक बार तोड़ने के बाद। तो जब तक 60,800 रिक्लेम नहीं करते, बैंक निफ्टी भी सेल ऑन रेस का जरिए रहेगा। अगर एक बार 60,800 के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट से एग्जिट कर लेना। तो मंडे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो मैं ईएमए भी लगाता हूँ। अभी क्या है, जब तक ये 20 एमए के ऊपर चलते नहीं है, दिस कम्स अराउंड 60,650 600 ही मान लो, 600 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना। और फ्रेश शॉर्ट आपको 500 के नीचे कर लेना, 60,500। और इसमें कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। सेंसेक्स में देख ले, सेंसेक्स में भी क्या है, सेंसेक्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया। सेंसेक्स में भी निफ्टी के जैसे एक ट्रेंड लाइन आप बना देना, इस पॉइंट को मिला लेना 5 मिनट टाइम फ्रेम में। जब तक सेंसेक्स इसके ऊपर नहीं चलते, सेफ प्लेस लॉन्ग नहीं करना। अगर कोई भी कैंडल, रेड कैंडल इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन कैंडल मिलते, यू कैन ट्राई शॉर्टिंग द मार्केट। फ्रेश शॉर्ट के लिए यू कैन शॉर्ट इट बिलो 81-200, जैसे 81-200 तोड़ते आप शॉर्ट कर लेना। लॉन्ग्स के लिए जो रिस्की प्लेस है 300 के ऊपर एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, स्कैल्पिंग लॉन्ग 100-200 पॉइंट्स का कर सकते हैं। और ईएमए लगा देना, ईएमए लगाने से आपको पता ही चल जाएगा। जब तक ये 20 एमए के ऊपर नहीं जाते, इसमें भी लॉन्ग नहीं करना। मिड कैप में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा टूटा मिड कैप फ्लैश में। मिड कैप और स्मॉल कैप में हेवी सेलिंग प्रेशर आया विद इन 5 मिनट्स में। दिस शोज द शैलोनेस ऑफ आवर मार्केट। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, हमारा मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। खाली जो डीए, खाली हमारा एसआईपी का पैसा आ रहा है, उससे पंप करते करते जा रहे। आप रिजल्ट देख लो पिछले क्वार्टर का, कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, एवरेज रिजल्ट है। लेकिन क्या है, हर स्टॉक 52 वीक्स हाई तोड़ के ऊपर जा रहे हैं।
इसलिए जा रहे हैं कि इतना पैसा आ रहा है ये कहाँ पार करेगा, जो अवेलेबल स्टॉक है उसी को ही परचेज करना पड़ेगा, चाहे वो उसका रिजल्ट खराब हो अच्छा हो उससे कोई मतलब है नहीं। चलिए, तो मिड कैप में क्या ध्यान रखना, मिड कैप जब तक 13,500 रिक्लेम नहीं करते आप इसमें लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। एक बार 13,530 एग्जैक्ट लेवल 530 के ऊपर चलना शुरू कर दिया 600 तक एक अच्छा खासा मूव मिल सकते हैं। तो मिड कैप में अगर मान लो फ्रेश शॉर्ट के लिए आपको 13,470 के नीचे ही कर लेना, ज़्यादा टारगेट मिलेगा नहीं। अगर मान लो मिड कैप में और गिरावट थोड़ा सा आते हैं, कोई भी बाउंस आते हैं मिड कैप में, आप फर्स्ट हाफ एन आवर में बाइंग के नजरिए आप इसको कंसिडर कर लेना। मिड कैप में आपको अच्छा खासा एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकते हैं और ईएमए वगैरह लगा देना, और इसमें देखने के लिए कुछ है नहीं। इंडिया विक्स हम लोग चेक करते हैं, इंडिया विक्स में 5% का तेजी दिख रही। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप क्लियरली ये देख सकते हैं, जब इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं आप लॉन्ग नहीं करना। अगर आप इंडिया विक्स का नज़र रख लिया था तो आप बड़ा लॉस से बच जाते हैं। ये देखो, ये 3 बजे से पहले क्या इंडिया विक्स कितना भाग गया, अचानक ये 8% तक भाग गया था, लास्ट में थोड़ा सा करेक्ट हुआ। तो इसलिए हमेशा इंडिया विक्स को ओपन करके आप आपका चार्ट का साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब इंडिया विक्स नीचे गिरते हैं आप शॉर्ट नहीं करना, इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं लॉन्ग नहीं करना, और उसमें कुछ देखने के लिए है नहीं। हम लोग कुछ ग्लोबल डाटा के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। इफ यू लुक एट द इम्पोर्टेंट डाटा केम ऑन फ्राइडे, जीडीपी it came at 7.8%. This is better than our forecast. लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कम आया बट एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया। मैं इसमें कमेंट करना नहीं चाहते, मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ कैसे लोग दिखा पाते, क्योंकि हमारा रिजल्ट देख लो तो रिजल्ट में इतना तोड़फोड़ कुछ दिख नहीं रहे, और हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में पता नहीं क्या कैलकुलेशन से लोग जीडीपी को इतना बढ़ते हुए, दिस इज द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब। अगर इतना हमारा जीडीपी का ग्रोथ है, हम लोग क्या है यूएस को पीछे धकेल सकते हैं इन अनदर 3 to 4 years टाइम, चाइना यूएस सबको। लेकिन रियलिटी में आप ही बताओ ये हो सकते हैं, मुझे पता नहीं कैसे लोग ये डाटा को निकालते हो सकते हैं। लोग जितना भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर को कम वेटेज देके जो जो अनइम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है उसको ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। चलिए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इस पे ऊपर मार्केट ज़्यादा रिएक्शन नहीं देगा। रुपये में हो सकता है कुछ रिएक्शन मिल सकते हैं। तो यूएस का पीपीआई डाटा है, ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। तो दिस इज अनदर, यू कैन से दैट दिस इज होलसेल इन्फ्लेशन का इंडिकेशन है, ये बढ़कर आया। दिस इज नॉट गुड फॉर मार्केट, और यूएस मार्केट ने बहुत ब्रूटली इसके ऊपर रिएक्शन दिया और बॉन्ड यील्ड सब गिर गया। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे प्रोड्यूसर प्राइस वगैरह बढ़ जाते हैं तो क्या है इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे चलेगा तो रेट कट नहीं कर पाएगा फेड, इसलिए यूएस मार्केट सब गिरते जा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर हम लोग देखेंगे तो और भी तेजी देखने को मिल रही है, इसलिए कि अभी सबको यही लग रहा है कि यूएस ईरान के ऊपर अटैक करते रहेगा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बढ़ते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर भागते रहते हैं। तो अभी गोल्ड और सिल्वर को शॉर्ट नहीं करना, ये सब मामला ठंडा होना, तो उसके बाद ही शॉर्ट के लिए सोच लेना। तो और पीपीए डाटा आने के बाद क्रूड भी बढ़ना शुरू कर दिया। हो सकता है अगर मान लो यूएस और ईरान के बीच में कुछ वार हुआ तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ये लोग बंद हो जाएगा, तो जितना भी ऑयल सप्लाई है ग्लोबल वो सब डिसरप्ट हो जाएगा, तो क्रूड 6,500 के ऊपर भाग सकते हैं। तो ध्यान रख लेना। चलिए हम लोग अपने शीट पे वापस चलते हैं। लेट्स टेक ए क्विक लुक एट आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज एफएनओ डाटा. This is for 2nd March 2026, and we are going to witness the Nifty expiry. So those who are new to my channel, how to read this data? These are two sections. The top section is index futures, index call and index put. Bottom section is stock futures, stock call and stock put. The participants are retailers
क्लाइंट भी बोल सकते हैं, डीए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोस, प्रोस को एचएनए भी बोल सकते हैं. Thursday means last to last trading day, Friday means last trading day. Total means what positions carried by these market participants for next trading day, that is for Monday. हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में चलते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश लॉन्ग ऐड कर दिया, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 92,000. एफए 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशनल सेल कर दिया, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.24 लाख. दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेयरिश. प्रोस ने कुछ 3,000 क्वांटिटी बाई किया, लेकिन इसका कुछ खासियत है नहीं. इंडेक्स कॉल में रिटेलर और बुलिश होते जा रहे हैं, 66 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिया, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.4 lakhs. This is not at all good for market. FAA, they purchase 1,500 contracts, but their net short it is intact 85,000. Pros ने 68,000 contracts और short ऐड कर दिया, उसका net long से net short में पहुंच गया. This data is also mixed to bearish. Index put में बाबर शेयर और तेज हो गया, तो और दोबारा जिंदा. तो बाबर शेयर कभी हार मानने वाला है नहीं है, जितना भी मार खाओ उतना तेजी से लोग लॉन्ग करते जाएगा. तो इसका 1.88 lakhs नेकेड पुट और सेल कर दिया, उसका नेट पुट शॉर्ट पहुंच गया 6 lakhs. बाकी एफए एंड प्रोस लॉन्ग ऐड करते जा रहे. दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा. स्टॉक फ्यूचर में भी खराब खबर, एफए 31,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करते जा रहे. प्रोस ने कुछ बाई किया, लेकिन एफए के ज़्यादा इधर मायने रखते हैं हम लोग. दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेयरिश. स्टॉक कॉल में भी यहाँ पे भी सवा शेयर बब्बर शेयर बन गया, यहाँ पे भी 5 lakhs पहुँच गया उसका स्टॉक कॉल नेट लॉन्ग. बाकी जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सेल करते जा रहे हैं, लेकिन रिटेलर कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा. स्टॉक पुट में भी यहाँ पे भी कम नहीं है, यहाँ पे भी बब्बर शेयर 1.87 लाख पहुँचे इसका स्टॉक पुट राइटिंग, और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है लॉन्ग लेके जा रहे हैं. दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेरिश डाटा. इन समरी, इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, retailers are ultra bullish in index and stock options. FA mixed to bearish in index and stock options. Pros ultra bearish in index options and mixed to bearish in stock options. कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो DA 12,293 करोड़ का परचेज किया था, FA ने 7,536 करोड़ का सेलिंग किया. बाकी जितना भी सेलिंग है प्रोस ने किया होगा, क्योंकि रिटेलर ने बाई किया होगा. पता नहीं ये कुछ बल्क डील वाले है, इतना बाइंग करने के बावजूद मार्केट इतना टूट रहा है, तो ये बाइंग का क्या मतलब है. इससे अच्छा है कि कुछ बाई मत करो. चलिए, let's look at the technical event outlook for Monday. We'll start from Nifty short consider below 25,140, you will get target up to 25,000. So 25,000 is a major support and psychological level. This level cannot be broken. Longs you can consider above 25,200. It's scalping long है, so first target 25,270, and if that is crossed then 25,330. Longs above 20 EMA only, and PCR oversold, तो एक bounce आना ही आना है, so watch for that. PCR 0.46 पहुंची है lower level पे. Bank Nifty 60,500 is a make or break level. अगर 60,500 टूट गया तो first target 350, followed by 60,200. Even 60,000 भी possible है अगर कुछ बवाल हुआ तो. लॉन्ग 60,600 के ऊपर ही कंसिडर कर लेना. फर्स्ट टारगेट 750 फॉलोड बाय 900. तो 60,500 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, इसको देखते रहना. अगर इसके ऊपर है तो लॉन्ग, इसके नीचे तो शॉर्ट. पीसीआर ठीक ही दिख रहे हैं. सेंसेक्स 81,200 इज द फ्रेश लेवल फॉर शॉर्टिंग. ये टूट गया तो 81,000 फॉलोड बाय 80,800 तक मिल सकते हैं. लॉन्ग्स 81,400 के ऊपर ही आप कंसिडर कर लेना. फर्स्ट टारगेट 600 फॉलोड बाय 800. सेंसेक्स में वॉच करते रहना, क्योंकि सेंसेक्स बहुत ज़्यादा टूटा है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है. इफ इट इज क्रॉसिंग अबव 81,600 देन ए शॉर्ट कवरिंग कैन हैपन. यहाँ पे भी पीसीआर थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में. मिड कैप 13,470 इज अ लेवल फॉर शॉर्टिंग. फर्स्ट टारगेट 430 फॉलोड बाय 380. अगर एक बार 13,400 तोड़ दिए मिड कैप, इसमें एक फ्लैश क्रैश आ सकते हैं. लॉन्ग्स अबव 13,500, फर्स्ट टारगेट 550 फॉलोड बाय 600. मिड कैप विल बी बेरिश अबव 13,500. जब तक 13,500 का नीचे है, इसको बेरिश नजर से देख लेना. पीसीआर लुकिंग गुड. द टोन रिमेन्स cautiously bearish.
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोशियसली बेरिश, क्योंकि पीसीआर थोड़ा सा ओवर सोल्ड है निफ्टी और सेंसेक्स का, तो बाउंस आ सकते हैं। सो जब तक निफ्टी 25,330 रिक्लेम नहीं करते, सेल ऑन राइज चलेगा इसमें। अगर एक बार 25,330 रिक्लेम कर गया तो डोंट शॉर्ट। व्यू सेल ऑन राइज टिल द टाइम मार्केट इज बिलो 20 एमए। अगर एक बार 20 एमए रिक्लेम करे, ध्यान से सुन लेना, इफ मार्केट इज रिक्लेमिंग 20 एमए देन डोंट शॉर्ट। PCR oversold, so bounce is doing Nifty and Sensex. Play a reversal with a strict sell. जो रिवर्सल आते हैं, जो रिट्रेसमेंट, यहाँ से कोई भी बाउंस आते हैं, आप उसको खेल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट सेल। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट एंड प्ले अ डायरेक्शनल मूव आफ्टर 9:45 AM। और मान लो ग्लोबली कुछ होते नहीं है, तो 9:45 के बाद मार्केट कोई भी डायरेक्शन पकड़ते हैं, मेरे हिसाब से एक लॉन्ग के लिए एक चांस मिल सकते हैं। देखते रहना। Finally, our last segment, that is a Nifty expiry special options and analysis. If you look here, Nifty close in between 25,150 and 25,200. तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो मिड पॉइंट बन गया 25,200. If you look here, still heavy put writers are holding 25,200. अगर कोई भी रीजन से ये 25,140 के नीचे चलना शुरू करते, ये सारे लोग हैं, ये लॉन्ग अनवेंडिंग के लिए जा सकते, तो यू कैन सी मार्केट अप टू 25,000। कोई दम नहीं है पुट राइटर में, सब भाग चुका है, तो क्योंकि इतना ब्रूटल फॉल आने के बाद कौन रुक सकते हैं। लेकिन अभी भी रिटेलर्स होल्ड है। पुट राइटिंग आप देखा होगा, 5 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेलर्स का ही। 25,200 में भी अग्रेसिव कॉल राइटर से अराउंड 47 लाख है। अगर मान लो कोई भी रीजन से मार्केट 25,250 के ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं, तब जाके मार्केट ऊपर भाग सकते हैं, 25,300 350 तक भाग सकते हैं। 25,300 में अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, 1.15 करोड़ कॉल राइटर्स अदर। ये अग्रेसिव कॉल राइटर जब तक फंस सकते हैं एक बार शॉर्ट कवरिंग हुआ तो। और उसके आगे 25,400 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है। पुट राइटर में से कोई धाम है नहीं है। हम लोग एक बार ऑप्शन प्रीमियम चेक कर लेते हैं। 25,150 200 ये दोनों लेवल पे आप चेक करो तो प्रीमियम ज़्यादा है, कॉल साइड में एक्सेसिव प्रीमियम है। तो दो ही रीज़न हो सकता है। अगर ये एक्सेसिव प्रीमियम मेंटेन करना है तो एक सिंगल कैंडल में 50-60 पॉइंट्स का एक बाउंस आ सकते हैं खुलते ही, तब क्या होगा, ये प्रीमियम गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। अगर इसको प्रीमियम को गिराना है तो इसको लोग मार्केट में खोल के थोड़ा देर साइडवेज रखेगा, तो प्रीमियम सब मेल्ट हो जाएगा। Once this premium is not melting, especially call side, then you consider for longs. Let's look at the global futures. If you look at the global futures, ये investing.com में बंद हो जाते हैं, तो लेकिन if you look at the US market, it has recovered more. And if you look at Gift Nifty in other sites, it will be 90 points up. If US futures are recovering on Monday morning, then you can see a gap up in our market. But this gap up will not sustain. The first gap up will be sold immediately. तो देख कर खेलना। तो आज वीकेंड है, छुट्टी के दिन है, तो इसलिए मैं आपको कुछ और बात बताना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको अपना ट्रेडिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जितना भी ट्रेडिंग विंडो है हमारा, जो 9:15 से लेकर 3:30 तक, ये जरूरी नहीं है कि हर एक मूव के लिए आप कूदना है। अगर आपको सेटअप सही बैठा तब जाके आप ट्रेड के लिए ट्राई कर लेना। अगर आपको सेटअप मिला नहीं और आपका टारगेट और आपका जो प्राइस आप दिख रहा है वो प्राइस आपको लग रहा है एक्सेस है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, तब ट्रेड करना नहीं है। स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम चाहिए। अगर वो मोमेंटम आते नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करना। कई बार ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेडिंग है, क्योंकि आपका पैसा जाएगा नहीं, आपका कैपिटल बच जाएगा, वो भी एक तरीके का सेविंग है। और एक और बात है, मान लो आपका 1-2 प्रॉफिट बन गया, सिस्टम बंद करना सीखो। अगर आप सिस्टम बंद करना नहीं सीखेगा, ग्रीड में पड़ा रहेगा, तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करो, तब जाके आप अच्छा ट्रेडर बन सकते। और चार्ट रीडिंग, प्राइस वॉल्यूम चेक करना, ये सब आप जो भी आपको फ्री टाइम मिलते सीखते रहो।
आपको कोई भी लर्निंग है वो वेस्ट नहीं हो जाते। जितना भी आप लर्निंग करते जाएगा, आपका जो ट्रेडिंग और डिसीजन थोड़ा सा परफेक्ट होते जाएगा। That's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel. Also recommend my channel to your friends and trading communities as well. Thank you.